Hello, students. So, up to last lecture, we have discussed about the vector addition law. Okay, last class of motion in plane, we have discussed vector addition, parallelogram law of vector addition. That was the last concept. In today's session, we will discuss about the product of vector. Product of vector, how to multiply a given vector to another vector. हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से लिखिएगा सब चीज़ों को, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वी हैव टू टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। टू टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वन इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, and second one is vector product. Vector product. Scalar product, that is also known as the dot product, or it is also known as dot product. Dot product. And vector product, that is also known as cross product. Cross product. So these two type of product we have in vector product. First product, that is known as scalar product, that is known as scalar product. क्यों scalar बोलते हैं? When we product two vector as a scalar or dot product, as a scalar or dot product, in that case your resultant value will be a scalar quantity. तो resultant value होगी वो scalar quantity हो, and in vector product or cross product resultant value will be a vector और vector quantity. resultant value क्या आएगी? vector quantity आएगी। तो कैसे होता है? सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो व्हाट इज द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट? सो दिस इज इफ वेक्टर ए एंड सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर बी, I want to dot product of these two, then a vector dot b vector, that is a vector का मैग्नीट्यूड b vector का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। सो a dot b इक्वल टू a b cos थीटा, a b cos थीटा। ओके, क्या होगा? a b cos theta, a dot b equal to a b cos theta. Now how we will use this formula? Let vector a, if I simply say I cap, and vector b is also I cap, then how you will product these two? So here I cap dot I cap, that means magnitude of I cap, magnitude of I cap into cos 0. Between same vector, angle will be 0, I cap and I cap in the same direction, hence angle between these two vector will be 0. You know, magnitude of the I cap and I cap, that is 1. So 1 into 1 cos 0 also 1. So it is 1. Similarly, j cap dot j cap equal to 1 and k cap dot k cap equal to 1. Now, if I product I dot j, that means magnitude of I cap, magnitude of j cap, cos 90, because angle between I cap, that means x direction, and j cap, that means y direction. So angle between these two is 90 degree. Cos 90 is equal to 0, that means that product will be also 0. So I dot j will equal to 0. Similarly, I dot k will also 0 and j dot k will also 0.
product of these two vector will be 0 like this. Okay. Now, if we want to multiply vector as a dot product, this is very simple thing, very simple value. Now, if the vector is given in form of I cap, j cap, k cap, साथ में दे रखे हैं तीनों का, तो कैसे प्रोडक्ट करते हैं? यहाँ तो मैंने बहुत सिंपल वैल्यू ले ली थी कि आई कैप और जे कैप दोनों. अगर यहाँ बात करें हम लोग, दिस इज द फॉर्मूला. इफ आई से वेक्टर ए इक्वल टू I1 A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap, and vector B equal to B1 I cap, B2 J cap, C2 B3 K cap. Then A dot B vector equal to, we will multiply only I to I, because when we multiply I to J, I dot J, that becomes 0. Similarly, I dot K, that becomes 0. J dot I, that becomes 0. J dot K, that becomes 0. K dot I will also 0. K dot J also 0. So we will just multiply the coefficient of I cap to I cap, J cap to J cap, and K cap to K cap. So A1 into B1, A2 into B2, A3 into B3. कई लोग पूछते हैं सर इसने आई कैप जे कैप क्यों नहीं लिखा? तो आई कैप डॉट आई कैप करेंगे 1 हो जाएगा, 1 लिखने में कोई मीनिंग नहीं है. जे कैप डॉट जे कैप करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने में कोई मीनिंग नहीं होगा साथ में. के कैप डॉट के कैप करेंगे 1 हो जाएगा, वो लिखने में कोई सेंस नहीं. इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे देखो, जब आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला, जो आपका फाइनल आंसर बना, इसमें आई कैप जे कैप के कैप का मेंशन नहीं है. मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया गया है. जब आपकी डायरेक्शन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. दैट्स वाई दिस वेक्टर इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट. इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैं साथ में ले लेता हूं यहाँ पे. इफ वेक्टर ए इज गिवन लाइक दिस, आई कैप प्लस j cap plus 4k cap, and vector B is given like this, I cap minus 3j cap minus 4k cap. Then A dot B equal to 1 into 1, coefficient of I is 1, coefficient of I here is also 1, plus 1 into minus 3 plus 4 into minus 4. So our answer will be 1 minus 3 minus 16. So 1 minus 19, it is equal to minus 18. So here 18 is a scalar quantity. 18 is a scalar quantity. So in this way, we can find dot product. We can find dot product. इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किसी भी गिवन वेक्टर का. अब एक चीज देखिए आप लोग, अगर आपके पास ए डॉट बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है. इफ आई से ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन व्हाट हैपन? व्हेन वी मल्टीप्लाई एज ए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, दैट इज ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, cos 90 become 0. So if two vector are perpendicular, then their vector product, scalar product will be 0. Then their scalar product or dot product will be 0. So if given like this, A dot B, A equal to this, B equal to this, that means A dot B for perpendicular vector must be equal to 0. So we can say it is the condition for perpendicular vector a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 will be equal to 0 in perpendicular vector. अगर दो वेक्टर perpendicular है, then their dot product will be 0. Then their dot product will be 0. दो perpendicular vector की यही कंडीशन है कि उनका dot product कितना होगा? 0 होगा.
ठीक है। अब यहां से दूसरा जो इसका एप्लीकेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। वेयर वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट, हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कहाँ और कैसे यूज करना है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको समझिएगा। यू नो, टू फाइंड एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। वेक्टर आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखा है। देन वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट, हम लोग क्या यूज करेंगे, केवल और केवल डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। यू नो, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, दिस वन इज ए स्केलर वैल्यू, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude of b vector into cos theta. So here cos theta equal to a dot b upon magnitude of a into magnitude of b. If a and b is given like this, a vector equal to a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap, and b vector equal to b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap. In that case, a dot b will equal to a1 a b1, a2 b2, a3 b3, ये इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज रूट ऑफ a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, and magnitude of b vector that is equal to root of b1 square, b2 square, b3 square. In this way we can find modulus of any given vector. So here cos theta become a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 upon root of a1 square plus a2 square plus a3 square into b1 square, b2 square, b3 square. So in this way we can find the value of cos theta. Hence theta equal to cos inverse a1 b1, a2 b2, a3 b3 upon root of a1 square, a2 square, a3 square into b1 square, b2 square, b3 square. So this is the value of theta. So using dot product, we can find angle between given two vector. डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो गिवन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। इसका यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए। एक क्वेश्चन करते हैं इस बेस एंड देन वी विल डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट। फाइंड angle between I cap, a vector equal to I cap minus j cap plus k cap, vector b equal to I cap plus j cap minus 2k cap. Here two vector is given. You have to find the angle between these two vector. So what is the angle?
First of all, we will find A dot B. A dot B, that is equal to 1 minus 1 minus 2. So this is equal to minus 1 minus 3, so minus 2. Minus 2. And magnitude of A vector, that is, you know what is the magnitude of A vector? Root of 1 square minus 1 square 1 square, that is root 3. And magnitude of B vector, that is 1 square plus 1 square plus minus 2 square. So that is root 6. Now, you know what is the A dot B and A vector magnitude, B vector magnitude we have? Formula for angle between cos theta, that is A dot B upon magnitude of A vector into magnitude of B vector. We have all values. So here cos theta equal to minus 2 upon root 3 into root 6. So what is the value here? Cos theta equal to minus 2 upon root 18. That we can write as minus 2 upon 9 into 2. So it is, can we write 2 as a root 2 into root 2? And here this one is 3 into root 2. 1 root 2 will be cancelled. So cos theta equal to minus root 2 upon 3. So theta equal to cos inverse root 2 upon 3. We can't find exact value. अब एग्जाम में हो सकता है ये आंसर नहीं दे, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. cos inverse of minus x, that is pi minus cos inverse x. अगर cos inverse of minus x दे रखा है, that is pi minus cos inverse x. So you can write like this, theta equal to pi minus cos inverse रूट 2 अपॉन 3. अगर MCQ में क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्म में आपको आंसर दिया हो सकता है. एंड दिस वन इज द ओनली करेक्ट आंसर. यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, बाकी करेक्ट काउंट नहीं होगा. ठीक है, हो सकता है उसमें बीच में माइनस वाला वो दे ही नहीं रखा हो, माइनस रूट 2 अपॉन 3 वाला ऑप्शन नहीं दे रखा हो, तो आप वो ढूंढते रह जाओगे कि वो कहाँ पे है. तो उस प्रॉपर्टी के लिए भी आपको साथ में कॉस की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है. क्या करना है आपको? कॉस की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है. इस चीज का ध्यान रखें. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो प्रोडक्ट है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट. दूसरा प्रोडक्ट कौन सा अपना? वेक्टर प्रोडक्ट है. या उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. Now what is the vector product? In this one we will take like this, A cross B equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into sine theta into n cap. N cap show the direction of resultant. N cap, it means your answer will be also a vector quantity. That's why it is known as the vector product. Okay. So here A cross B, that is not equal to B cross A. इस चीज का भी ध्यान रखना. B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है. You can say A cross B, that is equal to minus B cross A. क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा इन दोनों में, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. डायरेक्शन क्या होगी? दूसरे के अपोजिट होने वाली है. इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, एन कैप आपको डायरेक्शन दिखा रहा. अब डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर,
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्ट वेक्टर will perpendicular to plane of vector A and vector B। दो वेक्टर जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उससे जो नया वेक्टर बनेगा क्रॉस करने के बाद, उसकी डायरेक्शन उन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो कैसे निकालेंगे? जैसे आपको ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना, तो ध्यान देना है आपका राइट हैंड यूज करोगे। just spread your finger in the direction of the first vector, like vector A is in this direction and vector B in this direction. So just state your finger in the direction of first vector, in the direction of first vector, such that we can rotate finger in the direction of another vector. So here A and this one is B. So I will stretch my right hand in like this. When I rotate my finger in like this in the direction of B, then direction of thumb will be direction of the resultant vector. Thumb की direction क्या होगी? Resultant vector की direction. तो here resultant vector will be radially outward. Resultant vector क्या होगा? Radially outward होगा। A क्रॉस B करेंगे। अगर यहीं पे अगर B क्रॉस A करना हो, then ये B है और थंब अपना अंदर जाएगा जब अपन इसको A की ओर रोटेट करेंगे ऐसे। तो ध्यान दो, A क्रॉस B है वो रेडियली आउटवर्ड, B क्रॉस A है वो रेडियली इनवर्ड। तो जो वेक्टर बने रिजल्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बने। क्या बने? एक दूसरे के अपोजिट बने। इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन यूज किया, माइनस साइन। क्या यूज किया है? माइनस साइन। दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी परपेंडिकुलर to both given vector and also perpendicular to the plane in which given vector। अब अपन देखते हैं कैसे प्रोडक्ट करते हैं। ये तो हो गई बात डायरेक्शन की, प्रोडक्ट करेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट होने वाला नहीं है। आई डॉट आई तो सीधा 1 हो जाता है, यहाँ पे आई डॉट आई तो 0 होगा, क्योंकि जैसे ही मैं आई क्रॉस आई करूंगा, सॉरी आई क्रॉस आई करूंगा, तो वो होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन 0, और साथ में एन कैप लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 0 पूरे को 0 कर देगा। इसी तरह सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या होगा? 0 होगा। और के क्रॉस के क्या होगा? वो भी 0 होगा। अगर मैं बात करता हूं आई क्रॉस जे, वो होता है आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप मैग्नीट्यूड साइन 90, और फॉर हियर एन कैप, आपको पता आई कैप और जे कैप का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, वो होता है जेड एक्सिस। क्या होगा? जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस। तो यहां पे क्या आएगा? तो हम लोग जैसे यहां पे देखो, ये है दिस वन इज आई कैप फॉर एक्स एक्सिस, दिस वन इज जे कैप फॉर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अब यहां पे देखो आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे करोगे तो अपना हैंड आई की साइड में रखो, जे की साइड में घुमाओ, आई क्रॉस जे, अपना वेक्टर जो क्या आ रहा है, थंब बाहर की साइड आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बाहर की साइड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन बनेगी ये जेड एक्सिस। सो दिस इज के कैप। ये क्या है? तो यहां पे जो एन कैप आएगा उसकी जगह हम लोग देंगे के कैप। साइन 91 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के कैप। तो इसका मतलब जब जे क्रॉस के करेंगे तो इसका अपोजिट आएगा, सॉरी जे क्रॉस आई करेंगे तो वो होगा माइनस के कैप। ठीक है। सेम वे जे क्रॉस के दैट इज आई कैप एंड के क्रॉस जे, के क्रॉस आई दैट इज जे कैप, इनके अपोजिट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। अब ये तो मैंने इस तरह से आपको पूरा समझा दिया कि कैसे हम लोग आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो के कैप क्यों आता है, जे क्रॉस के करते तो आई कैप क्यों आता है, और के क्रॉस आई करते तो जे कैप क्यों आता है। अगर एग्जाम में ये सब करने में दिक्कत आ जाए और आप भूल जाओ कि भाई कैसे करना है, तो क्या करोगे? इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सिंपल तरीका। यहां पे इस तरह से होता है, एक सर्कल ले लीजिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है। अब क्या होगा,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखो हमेशा। तो आई क्रॉस जे करोगे दैट इज के, जे क्रॉस के करोगे दैट इज आई, एंड के क्रॉस आई करोगे दैट इज जे। एंड इफ you move in anti-clockwise direction, then j cross I, that is minus k. Similarly, j I cross k, that is minus j, and k cross j, that is minus I cap. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब दो वेक्टर करेंगे, जो नया वेक्टर बनेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, उसके प्लेन के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसलिए आई क्रॉस जे करते हैं तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन जेड एक्सिस मींस के कैप, और जे क्रॉस आई करते हैं तो जेड एक्सिस है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस के कैप होता है। और उसका मैंने तरीका याद करने का आपको अलग से भी बता दिया कि भाई आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको याद भी रख सकते हो। इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखें। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, इसी का टॉपिक है कि प्रोडक्ट कैसे करना है, क्योंकि इन बड़ी वैल्यूज को सिंपल प्रोडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे प्रोडक्ट करोगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में इस सर्कल को भी याद कर लोगे तो भी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रोडक्ट करने का तरीका बताता हूं मैं। अगर हमें आपको इस तरह से दे रखा ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, and B vector equal to B1 I cap, B2 J cap, B3 K cap, then A क्रॉस B। अगर आप लोग ऐसे करोगे A1 इंटू B1 I क्रॉस आई तो जीरो हो गया, ठीक। A1 इंटू B2 I क्रॉस J, फिर वो लिखो K कैप। A1 इंटू B3 I क्रॉस K आपका होगा माइनस J कैप। अब यहां ये तो मुझे तो पता है, आप तो एग्जाम के अंदर क्या हो जाओगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, पूरी खिचड़ी बना दोगे, और जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी नंबर भी जीरो मिल जाएगा। तो कैसे हम इसको सोल्व करें, इस खिचड़ी को पकने से बचाना है, आपको अलग अलग रखना है सब चीजों को। तो इसके लिए एक तरीका होता है, इसके लिए एक तरीका होता है, आप मैट्रिक्स बनाओ। इस ये दो लाइन है ना, मॉड्यूलस नॉर्मली बोलते हैं इसको मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैथ्स वाले, डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसमें क्या करना है, आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो आई जे के कैप लिख दो पहले, आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद जो पहले वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट पहले लिखने हैं, और बाद में वेक्टर उसके कोएफिशिएंट सेकंड रो में लिखने हैं। फर्स्ट रो के अंदर लिखेंगे A1 A2 A3, सेकंड रो के अंदर लिखेंगे B1 B2 B3। ठीक है, ये करते हैं। अब कैसे करेंगे सोल्व, सबसे पहले आई कैप बाहर ले लेंगे, लीव द रो ऑफ आई कैप, मल्टीप्लाई, तो पहले है ऊपर उसको पहले, तो A2 B3, A2 B3 माइनस A3 B2, देन माइनस J कैप, माइनस J कैप, लीव द रो ऑफ J कैप, इसको छोड़ दीजिए, देन A1 B3 माइनस A3 B1, देन K कैप, लीव द रो ऑफ K कैप, A1 B2 minus A2 B1. In this way we can multiply and our answer will be 100% correct. इस तरह से आप करोगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा, कोई उसको गलत नहीं कर पाएगा। अदरवाइज इसमें कोई ना कोई क्या होगी, मिस्टेक होगी। तो मिस्टेक से बचने के लिए हमें इस तरह का प्रोडक्ट करना है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम लोग केवल दो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। कल हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन। तो यहां पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप
प्लस के कैप, ये वेक्टर है। इसका मुझे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट? सो आई विल फाइंड ए क्रॉस बी। अब यहां देखो, अगर मैं आई क्रॉस जे करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट आई जे के, आई जे के लिख दो, आधा काम खत्म। पहले जो दे रखा है उसका कॉपिशेंट पहले लिखो, तो कॉपिशेंट आई का 1, जे का 1, के का 3। फॉर बी -1, -2 एंड 1। नाउ कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन आई कैप, लीव द रो ऑफ आई कैप, कॉलम रो छोड़ दीजिए, आई वाला कॉलम छोड़ दीजिए, रो भी छोड़ दीजिए। नाउ 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2। ओके, हियर माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। So j cap, leave this column, 1 into 1 minus 3 into -1, then k cap plus का, leave the column of k cap, 1 into -2 minus 1 into -1। ऐसे किया तो क्या आएगा? I cap 1 plus 6 minus j cap 1 plus 3 plus k cap -2 plus 1. So here we will have answer 7 I cap minus 4 j cap minus k cap. So this is our answer of A cross B. A cross B. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन दैट वेक्टर इक्वल टू 0। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन 0। साइन 0 कितना होगा? 0 ही होगा, तो पूरा वैल्यू क्या आएगा? 0 है। पूरा वैल्यू क्या आएगा? 0। तो दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स वेक्टर आर पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें ऑल अबाउट दी वेक्टर प्रोडक्ट। दो टाइप का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो आंसर आता है वो क्या होता है? वो स्केलर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, इसमें जो आंसर आता है वो वेक्टर होता है और उस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों गिवन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड, डिपेंड करता है। उसके लिए मैंने आपको राइट हैंड लॉ बताया था। अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करना है? उस वेक्टर की अलोंग स्ट्रेच करना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है कि आप फिंगर्स को दूसरी वेक्टर की साइड में रोटेट कर सकते हो। देन योर थंब डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, सी यू इन टुमारो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके।